बात है. So who cares? We are here, ladies and gentlemen. Welcome to Horror FM 105. Let me start the program. This is the late night horror show. सिर्फ आज के दिन इसका एक रीमिक्स वर्जन हम आपके लिए प्ले करने वाले. So the first track जो मैं हमेशा अपने शो में चलाता हूँ, इट्स बाय माइकल जैक्सन, थ्रिलर. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं गाना कौन सा है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए दोबारा से मैं बता देता हूँ. माइकल जैक्सन एक गुलकार गुजरे, सही है, बहुत अजीम गुलकार जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है. तो उनका ये गाना थ्रिलर, वो मैंने अपने शो का एक बैकग्राउंड गाने के तौर पे इसको बाकायदा इस्तेमाल किया है और मुझे अच्छा भी लगता है और ये एक जरा फील दे देता है जरा शो को ना, तो मजा आता है जरा इसको प्ले करने में. हो सकता है कि आज भी आप अकेले हो, लेकिन आज अकेले होने के डर नहीं होना चाहिए, सही है. सो लेट मी स्टार्ट प्रोग्राम विद दिस Thriller Night. Ladies and gentlemen, my name is Minhaj and this is Horror FM 105. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller Night. You're fighting for your life inside a thriller tonight. You hear the door slam, realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand, wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination, girl. But all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time, 'cause this is Thriller Night. There ain't no second chance against the thing with the 40 eyes, girl. You're fighting for your life inside a thriller tonight. Night creatures calling, the dead start to walk in their masquerade. There's no escaping the jaws of the alien this time. And this is the end of your life. They're out to get you. The demons closing in on every side. They will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah, all through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is Thriller Night, 'cause I can feel you moving. It goes through the territory. So let me hold you tight and share up together. It's tonight. This is Thriller Night, girl. I can feel you moving. It goes through the territory.
The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. I'm gonna do it The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body is starting to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Right, folks, that was Michael Jackson with his amazing track Thriller. खैर, आज हम अपने शो के बारे में जरा बातें करने की कोशिश करते हैं. अगर आप लोगों के पास कुछ सवालात हैं, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के पास सवालात होंगे, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस हमसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से. सबसे पहला जो लोगों का मुझसे सवाल होता है जब भी मेरी मुलाकात होती है या फोन पे बात होती है, ईमेल्स पे होती है, तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सच्चा है, झूठा तो नहीं है. तो नहीं, ऐसा कोई हरगिज़ बात नहीं है. कोई कहानी जो मैं सुनाता हूँ अपनी तरफ से वो 110% सच्ची होती है, गारंटी के साथ, क्योंकि वो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ पेश हुई भी होती है. इसलिए मुझे उसके बारे में इतनी श्योरिटी होती है. और जो लोग कॉल करके बताते हैं उनका मैं सिर्फ यहाँ तक गारंटी ले सकता हूँ कि वो कोई पेड कॉलर्स नहीं होते, कोई झूठे कॉलर्स नहीं होते. हाँ, अगर उनकी तरफ से कहानी झूठी है या दोगली है, वो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता. अपनी तरफ से यहाँ तक जो हमारे हॉट 105 के स्टूडियो से लेके जो आपके आवाज पहुंच रही है वहां तक मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यार ये सही है. इसके अलावा जब ये शो मैंने शुरू किया था तो ये मैंने एक टॉपिक के तरह अपने रॉक कराची के शो में, जो कि मैं बुध जुमेरात को करता था, उसमें मैंने एक टॉपिक के तौर पे इसको यूज किया था. और वो टॉपिक मुझे नहीं पता था कि वो एक प्रोग्राम डिजाइन हो जाएगा. और फिर इट वाज अमेजिंग, इट गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स. मुझे सिर्फ रेडियो इंडस्ट्री से नहीं, टीवी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, एड्स की इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से, हर जगह से लोग कॉल्स करके बोलते थे कि यार ये कैसा शो कर रहे हो, ये क्या और है, वो क्या और है. सही है. इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी बनाया. लेकिन देखें, मजाक तो दुनिया के लोग हर चीज पे मनाते हैं. से चाहे वो आमिर लियाकत हुसैन हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, मतलब साहिल लोधी हो, आपके पास, हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं. हमने इन सब का बहुत मजाक उड़ाया है. लेकिन इनकी तरक्की पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इन्होंने किस तरीके से तरक्की की है. सही है. तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इस पे पॉइंट आउट किया, यार ये फेक शो है, झूठा शो है, झूठा इंसान है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, झूठ बोलता है. तो मैं अब इसके बारे में सफाई तो पेश नहीं कर सकता किसी को कि आया ये प्रोग्राम झूठा है कि सच्चा है. लेकिन हमने अपने शो में बहुत सारे लोगों को बुलाया, उनको ऑनर किया, और उनके सामने ही बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो वो खुद गवाह हैं. तो इसके बारे में हम मजीद कुछ नहीं कह सकते. इसके अलावा फिर इस प्रोग्राम को और जो बूस्ट मिला वो मिला फेसबुक के जरिए, जहाँ पे कोई 38,000 या 39,000 लोगों ने ऐड किया हुआ है इस फेसबुक पेज को. और मुझे फेसबुक की तरफ से ईमेल्स आती हैं कि आप चाहें तो इसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं. सर, कैन यू इमेजिन कि ये प्रोग्राम ग्लोबली इतना सुना जाता है. बल्कि मैं इसकी आपको रिसेंटली अभी वो भी बताऊंगा, पूरे जो इनसाइट्स हैं कि इस प्रोग्राम को कहाँ कहाँ सुना जाता है, किधर किधर सुना जाता है. जैसे कि मेरे सामने अभी एक पूरी लिस्ट आई हुई है जिसमें यूजर्स बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से कितने हैं, UAE से कितने, सऊदी अरब से कितने हैं, और इसके अलावा अमेरिका से कितने, कनाडा से कितने, इंडिया से कितने, रियाद, मुंबई. इट्स अमेजिंग. सही है. मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान, USA, सऊदी अरेबिया, इंडिया, UAE, UK, कनाडा, बांग्लादेश, मलेशिया, कुवैत, कतर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ओमान, इटली, इजिप्ट एंड घाना. क्या बचा? सही है. तो शो नहीं मार रहा,
लेकिन बस आप लोगों की वजह से इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि हम लेट नाइट हॉरर शो नहीं कर सकते जो मैं करता हूँ क्योंकि टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो मैंने सोचा कि आज इन लेट नाइट हॉरर शो के बारे में बात करें। खैर ये जरा साइड में करते हैं और वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम ट्यून इन किए में हॉरर एफएम 105 पे और प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे मालूम है कि आप सब हक्का बक्का होंगे कि आज ये क्या हो गया, ये शो कौन सा आ रहा है, कैसा आ रहा है से। तो जी हाँ, मैं ही हूँ मिनहाज अली अस्करी, मैं ही प्रोग्राम करता हूँ द लेट नाइट हॉरर शो, लेकिन आज नहीं कर पा रहा, रीजंस बता दिए बहुत बार, सही है। इसके अलावा आज बारिश हुई, ओहो ये तो मतलब तबाही बारिश हुई ना। इतनी बारिश तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। खैर देखी थी 2 साल पहले 2.5 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरे घर के नीचे आपको मैं बताता हूँ, मेरे घर के नीचे मैं अपनी बैल्कनी से देख रहा था तो मेरे घर के नीचे से एक सुजुकी FX बहती हुई जा रही थी इतना पानी था। मेरी गाड़ी आधी डूब चुकी थी पानी में, यानी कि सीट कवर्स तक पानी आ चुका था से, और दरख्त तो गिरी जाते। मैंने एक बच्चे को भी बेचारे को भागते हुए देखा, पानी में ना डूबता हो जाता, तो उसको लोगों ने डंडी मारी और पकड़ लिया। फिर मोबाइल फोन गिरते हुए नजर आ रहे थे बहते हुए। तो मेरे घर के सामने से एक पूरा रेला गुजर रहा था बारिश का, क्योंकि भादराबाद का पानी, तारकोट का पानी और ये सारे जो पानी है, ये सारी रोड्स ढलान में बनी हुई है। थैंक्स टू जिसने भी रोड्स बनाई है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये उन्होंने चीज की है कि सारी रोड ढलान में, और वो ढलान आके खत्म होती है मेरे घर की तरफ, तो हमारे एरिया की तरफ ना, तो वो पूरे एरिया का पानी हमारे घर के सामने से गुजरता है। मैंने लिटरली फेसबुक पे अपलोड भी किए कुछ तस्वीरें, वो आप देखें। मेरे जो ऑपोजिट जो नेबर्स हैं जिनका घर है, उनके घर में, उनके घर के ड्राइंग रूम तक पानी था, इतना पानी था। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है, उनके लिए बहुत तकलीफ देता। खैर लेकिन मजा बहुत आया, बारिश थी बहुत ही जबरदस्त। और मैंने इत्तेफाक से ये किया कि बहुत सारे लोग प्लान बना लेते हैं कि बारिश जैसी होती है तो वो बीच की तरफ निकलते हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि चलो भाई बीच चलते हैं। मैंने कहा मैं बस ऊपर से आ रहा हूँ जरा कपड़े चेंज करके। मैं अपनी शॉर्ट्स पहन के और टी-शर्ट पहन के आया हूँ नीचे। मैं देखा मेरी गाड़ी जो आधी डूबी हुई है और मेरी अम्मा गाड़ी में बैठी हुई। बेटा मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं क्या करे, आप फंस गई, आप तो फंस गई और आपको गाड़ी में रहना पड़ेगा जिंदगी भर। लेकिन उनको बड़ी मुश्किलों से निकाला और इट वाज फन। बारिश होती थोड़ी देर के लिए रहमत है, फिर जरा जहमत बन जाती है, फिर अजाब की सूरत में आ जाती है। लेकिन अब जाके सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी ये सुना है कि बहुत सारे एरियाज की लाइट्स बंद हुई हुई है, फोन लाइन्स तबाह हुई हुई है, डैमेज अच्छा खासा हुआ है, रोड्स तबाह हो चुकी हैं। तो अब ये यहाँ पे गवर्नमेंट का काम आता है कि वो कितना रोल अपना अदा करते हैं। यार हमें कहा भाई यार गवर्नमेंट करे ना करे, हमें तो आदत है कि कुछ ना हो, हम अच्छे रहते हैं। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू RFM 105। अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं और अपने सवालात हमसे करना चाहते हैं लेट नाइट हॉरर शो के हवाले से, जो भी सवाल है करिए, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं अपने मोबाइल के और उधर सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। और इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने सवालात, अपनी कहानी, अपने वाक़या शेयर कर सकते हैं। किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आज चूंकि फोन लाइंस नहीं है तो मैं अपनी तरफ से उन इलाकों के बारे में, उन जगहों के बारे में बात करूं जहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल हम उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत अपने लेट नाइट हॉरर शो का फील भी रखेंगे। सो डोंट वरी, सैड होने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक। चूंकि हमारा प्रोग्राम भूतों, चुड़ैलों और इन चीजों पे होता है, तो मैंने एक गाना निकाला है जो कि मूवी है डेली बेली, उसके अंदर से, और गाना गाया सूरज जग्गन ने और गाया जा चुड़ैल। तो आज हम चुड़ैल को कहते हैं जा चुड़ैल जा। एंजॉय दिस लवली ट्रैक। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भी अगर चलवाना चाहते तो लगा सकते हैं हम लोग आज, और बहुत सारी बातें करनी है। सो फ्रॉम द मूवी डेली बेली, दिस इज सूरज जग्गन विद जा चुड़ैल। बातों से है तूने जो सताया मुझे, उंगली पे नचा के तूने चूना जो लगाया मुझे। अरे जा 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 अरे जा जा जा, wanna say yes, जा चुड़ैल, yeah yeah, जा चुड़ैल।
डर नहीं ये ले देख ठेला मेरा ये मेरे जादू कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा अबे जा 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 once again, down to hell, down to hell, Sita! कुछ नहीं सड़ा हुआ आलू है तू You know what you are नहीं परी नहीं जंगली एक भालू है तू अरे God hell अरे जा 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 Everybody जा चुड़ैल जा चुड़ैल जा चुड़ैल चुड़ैल ओए भैया तो जा चुड़ैल के पीछे ही पड़ गए ना ये फ्रॉम द मूवी दिल्ली वैली दैट वाज जा चुड़ैल। आप लोग एसएमएस शामिल करने की कोशिश करते हैं और आज सिर्फ और सिर्फ एसएमएस होंगे तो इसलिए असद फ्रॉम मलीर सत्यानाश कर दिया सारे मूड का बैंड ही कर दो इस प्रोग्राम को। असद यार क्या हो गया इतनी जज्बाती ना हो हमारी कौम बड़ी जज्बाती है फौरन डिसहार्ट हो जाती है। हाय दिस इज फाखर हुसैन अस्सलाम वालेकुम डियर डोंट वरी अबाउट टेक्निकल फॉल्ट वी आर ऑलवेज विद यू एंड प्लीज प्ले छमक चलो ट्रैक ऑफ रावण। चलें बिल्कुल। मशूद कहते हैं मशूद यार मिनहाज भाई आज प्लीज बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना प्लीज। बिल्कुल बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सलाम इट्स मी फसी आई एम फर्स्ट टाइम लिसनिंग योर शो बट इट्स इम्पॉसिबल लिसनिंग योर हॉरर शो बट आई एम एंजॉयिंग। हाँ आज तो आप सुन सकते हैं। अच्छा मुक्सिद थोड़े बहुत किस्से तो सुना दें थोड़े बहुत किस्से सुना दें। चले वो तमाम लोग जो अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है। हाय मिनाज भाई दिस इज मायरा प्लीज आप हॉरर शो का फील रखें पूरे वीक वेट करते हैं इस शो का तो वही हॉरर ट्रैक चलाएं जो चलते हैं और आज ऑडियो क्लिप सुनवा दें हॉरर और अपनी कहानियां शेयर करें प्लीज जरूर पढ़िएगा। चलें बिल्कुल मैंने जैसे पहले बोला था कि हम वक्तन फवक्तन जो है वो कहानियां भी डालते रहेंगे ऑडियो क्लिप्स भी डालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को असल में ये आप लोग की गलती नहीं ना मेरी गलती है लेकिन बस ये है कि जब प्रॉब्लम आती है एक रेडियो स्टेशन पे याद रखिए लाइव ट्रांसमिशन करना सबसे मुश्किल काम होता है। सबसे फनी सबसे अच्छा और सबसे जबरदस्त एक आर्टिस्ट के लिए लाइव प्रोग्राम करना होता है लेकिन उसी के साथ साथ सबसे मुश्किल भी होता है क्योंकि हर चीज ऑन द स्पॉट होनी मस्ट होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे पूरे प्रोग्राम पे फर्क पड़ता है। जैसे आज फोन लाइंस नहीं चल पा रही इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो क्योंकि कॉल्स पे बेस करते इसलिए हम कैरी ऑन नहीं कर सके इसीलिए। वरना होता ये कि मैं बगैर कॉल्स के भी शो कर सकता था लेकिन वो फील नहीं आती वो अच्छा नहीं लगता और फिर आप लोग की शिकायत करते हैं यार ये तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। बहुत सारे लोगों की आती है ना। साकिब कहते हैं कैसे है मिनाज भाई बारिश का मजा लिया। ओहो बारिश का मजा बारिश ने हमारे मजे ले लिए आप बारिश के मजे की लेने की बात कर रहे हैं। सारा जैम भी माम आपका प्रोग्राम सुनती हूँ सारा जब भी आपका प्रोग्राम सुनती क्या आपका मैसेज पता नहीं क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। आज आप शो क्यों नहीं कर रहे प्लीज टेल मी। हमारी फोन लाइंस नहीं चल रही इसलिए नहीं कर पा रहे। सही है। अलीना जैदी सलाम मिनाज भाई आपको मैंने सिर्फ सीरियस ही सुना है लेकिन आज तो यू रॉक्स बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आपने सिर्फ सीरियस सुना है मुझे। कबीर भाई क्या आज हॉरर शो करने का मूड नहीं है आज फिर कोई नई टोपी पहनाना चाहते हो। भाई बॉस ये ठीक नहीं हो रहा 2 घंटे से वेट किया
यार नहीं भाई, अगर नहीं करना होता मैंने शो तो मैं आता ही नहीं ना, और फेसबुक पे पेज पे लिख देता कि भाई नहीं आ सकते आज बारिश की वजह से, लेकिन हम आए, सही है। तो अरशद भट्ट कहते हैं मिनहाज भाई आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ, आज बहुत हर्ट किया है आपने, एक हफ्ते के बाद तो प्रोग्राम आता है, सो सैड। यार ऐसे नहीं करे ना, मैं आप लोगों से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं ज्यादा हर्ट होता हूँ, सही है। लेकिन मैं बुध के दिन करूंगा ना शो, था फिक्र ना करें यार, मैं बुध को भी करूंगा और सैटरडे को भी करूंगा, तो नेक्स्ट हफ्ते 2 प्रोग्राम होंगे। भाईजान बैकग्राउंड म्यूजिक तो चेंज करें अकॉर्डिंग टू योर शो। नहीं कर सकता। शर्विन डिसूजा वेरी वेरी सैड, आज सारे सैड हो गए भाई, आज सब मुझे बदुआएं दे रहे होंगे कि मिनहाज अली अस्करी तुम पे ये, मिनहाज अली तुम पे ये। यार मैं क्या कह सकता हूँ भाई, अब मैं क्या करूँ, सही है। फेसबुक की तरफ चलते हैं। 1313 पे तो बहुत सारे लोगों ने पूरा बुला कर दिया। 1313 पे तो भाई क्या कर सकते हैं। फुरकान सईद खान कहते हैं मिनहाज भाई प्रेजेंट, माय नेम इज फुरकान सईद और मेरा नाम आज लाजमी शामिल कर लीजिएगा। लीजिए जी। सरमत खान कहते हैं मिनहाज भाई आपने सबकी नींदें खराब कर दी, सब आपके शो का वेट कर रहे थे, पहले बता देते आज शो ही नहीं होगा तो सब सो जाते। और मिनहाज भाई एटलीस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक तो हॉरर वाला चला दें, वेडनेसडे और सैटरडे रॉक्स, बस देख लीजिए। ये तो हमारे अशर हुसैन जो है उनको पसंद आया। राहिल अली मोहम्मद कहते हैं मिनहाज भाई तुसी ग्रेट हो, इंतजार तो बहुत था कि लश वाला शो होगा, लेकिन ये हॉरर शो कॉमेडी शो में कन्वर्ट हो गया। हाँ सही कह रहे हैं। हदीसा कहती हैं बारिश की वजह से सारे बरसाती मेंढक निकल आए। होए किसको कह रहा मेंढक, होए हैं? बेला मरियम मिनहाज भाई सैड। मरियम हुसैन तो कहती हैं, मरियम हसन कहती हैं कि बस वो उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। नुमान अली खान आपका भी शुक्रिया। छमक छल्लो गाने की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये छमक छल्लो गाना मैंने भी नहीं सुना एक्चुअली, ये कौन सी फिल्म का गाना है? रावण 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 हमारे पास है कि नहीं है? रावण अभी नहीं है। गो टू हेल नहीं गाना था, मैंने किसी को नहीं कहा। खैर हम बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। फ्रॉम द मूवी रेडी, दिस इज, आज मैं वो गाने चलाऊंगा जो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं लेट नाइट हॉरर शो से आधे घंटे पहले और शो लेट नाइट हॉरर शो के आधे घंटे बाद ये गाने चलेंगे। कैरेक्टर ढीला है जी, ये लोग कह रहे होंगे कि मेरा कैरेक्टर ढीला है, तो चलें जी ये गाना आप तमाम लोगों की तरफ से मैं अपने आप के लिए डेडिकेट कर देता हूँ। बस अगर आप लोग अपनी पसंद के गाने को सुनना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। लेट नाइट हॉरर शो के हवाले से कोई भी सवाल करने आज आप कर सकते हैं, किसी भी हवाले से सवाल करने करिए। फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी अपने वाकयात, अपनी कहानी और अपने सवालात शेयर कर सकते हैं। आज मैं चाह रहा हूँ कि आज आप लोग मुझसे द लेट नाइट हॉरर शो के बारे में पूछें, इस शो के बारे में पूछें, एक साल जो मैंने किया इसके बारे में पूछिए, जो मैं वाकयात शेयर करता रहा, जो बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी लोगों के हवाले से, उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी कि लोग करते भी हैं कि नहीं। प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। मतलब जो यौवन चमकीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब
तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। चर्चा फेसबुक में है, मजा बस एक लुक में है, हंसी चेहरे का कौन दीदार बार 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 करता है। जो दिल का फोटो फ्रेम हो, वहाँ फोटो की सेम हो, कैलेंडर की तरह उसे रोज 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 चेंज करता है। जितनी हो जितनी भी मजा उतना नशीला है, चलेगा जो भी है आंखों का रंग काला या नीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, 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 मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। हर सफर में आपका हम सफर। हॉट FM 105। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस दूसरे में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to The Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे
हम अपने शो में ऑन एंड ऑफ इस तरह करते रहेंगे। आज वो तमाम लोग जो अभी तमाम लोग द लेट नाइट हॉरर शो सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी अपने SMS हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज न्यू मैसेज में जाए, लिखे HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। आज दोपहर से ही कराची में जोर और शोर से बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि लोगों की गाड़ियां, लोगों का सामान बहता चला गया। बहुत सारे लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि कराची का जिस तरह मौसम खराब से खराबतर होता जा रहा था, उसके लिए जरूरी थी ये बारिश। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि उन लोगों का क्या हुआ जो बेचारे अभी अपने घरों में नहीं है, तन्हा किसी कॉर्नर पे पड़े होंगे क्योंकि उनकी बस्तियां, उनकी झोपड़ियां पानी में बह गईं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की गाड़ियां खराब हो गईं और इस बारिश का फायदा उठाते हैं सबसे ज्यादा चोर, जो ट्रैफिक जैम में लोगों के मोबाइल छीन रहे, वॉलेट छीन रहे। बारिश के बाद जो एक, हो सकता है कि ये सिर्फ मैंने नोट किया हो सकता है कि आपने ना किया हो, बारिश होने के बाद और स्पेशली जब रात हो जाती है तो शहर भर में आपको एक खामोशी की लहर दिखाई देती है। तारीकी छाई हुई होती है, अंधेरा छाया होता है। यहां तक कि अपने घर में भी आपको हर चीज साकित सी नजर आती है। इसी खामोशी, इसी अंधेरे, इसी बेरौनकी के साथ आज अपने प्रोग्राम का पहला वाकया शेयर करते हैं जो कि फैसल हुसैन सिद्दीकी ने हमसे शेयर किया फेसबुक पे। अब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम फैसल और मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में रहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से अपनी जिंदगी के कुछ खराब तरीन दिनों से गुजर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं जिस घर में रहता हूँ उसके अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई है, कोई ऐसी चीज जिसको वो देख नहीं सकते लेकिन उनकी आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि उनके कमरे में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके किचन में, हर कॉर्नर पे अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की। और अभी रिसेंटली जो उनके साथ सबसे अजीब सा वाकया हो रहा है वो ये हो रहा है कि रात के 3 बजते हैं और उनके कमरे की लाइट्स ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। और वो कहते हैं जो लाइट बंद खुलती है वो बड़े म्यूजिकल तरीके से खुलती बंद होती हैं और रात के 3 बजे एग्जैक्ट। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या करूं इसके बारे में, एंड ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट इट। फजल साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस प्रोग्राम को जब से मैंने शुरू किया है 2 इलाके हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा वाकयात लोगों ने शेयर किए हैं। सबसे पहला है सखी हसन की तरफ का और दूसरा है गुलिस्तान जौहर। और उसके अलावा गुलशन इकबाल के भी बहुत सारे कॉलर्स आके हमें बताते हैं कि उनके घरों में कुछ है। पिपी सिचेस,
क्लिफ्टन डिफेंस। मेरा एक सवाल आप लोगों से है, बल्कि मेरा मानना ये है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये मखलूक एग्जिस्ट जरूर करती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे दिमाग की कोई प्रॉब्लम भी हो। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी आवाजों के बारे में बात करते हैं जो बड़ी नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनके लिए वो एबनॉर्मल आवाज होती है। अगर ऐसा सब कुछ आपके वहां, आपके कमरे में, आपके घर में, आपके ऑफिस में होता है, तो आप लोग अपने वाकयात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 1313 पे हॉट टाइप करें, अपना नाम लिखे और मैसेज भेज दें, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. My name is Minhaj Ali Askari, and it's 1:55. Alright folks, welcome back once again. जी हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर हो क्या रहा है आज के शो में। तो जी आज के शो में ये हो रहा है कि हम अपने टेक्निकल रीजंस की वजह से प्रॉपर तरीके से लेट नाइट हॉरर शो नहीं कर पा रहे, जिसमें हम फोन कॉल्स, इंटरनेट के जरिए और ये सारी बातें करते हैं। तो वो टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारा फोन खराब है, जिसकी वजह से हम ऑन एयर लोगों को कॉल्स ले भी नहीं सकते और उनको कॉल कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हम आज जो शो है वो जरा मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। जहां मैं वाकयात शेयर करना शुरू करूंगा, वहां पे हम द लेट नाइट हॉरर शो का जो रियल इफेक्ट है, फील है, वो ले आएंगे। और वैसे हम नॉर्मली इसी तरह शो करते रहेंगे और साथ में आज गाने भी चलाएंगे, जरा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। चले ना, कोई बात नहीं ना, आज एक दिन माफ कर दीजिए, होता है, 1 साल से शो कर रहे हैं, कभी कभी मिसहैप्स हो जाते हैं, तो उसको बुरा या सैड या नाराज होने की जरूरत नहीं है यार। हम तो हमेशा से वो कहते हैं ना यार, एडजस्ट कर लेते हैं, लाइट नहीं है तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, यूपीएस लगा लेते हैं। तो यार आज शो में भी एडजस्ट कर लो ना, है क्या मतलब, मैंने कोई ट्रीटी साइन की है कि रोजाना मैं शो करूंगा और इसी तरीके से करूंगा। कभी कभी हो जाते भंड यार, हो गए, कैरी ऑन, लिव विद इट, कोई बात नहीं, सही है। तो मुझे पता है कि मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, मैं दोनों तरीके से फील रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक, और फ्रॉम द मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। इसमें इमरान खान है, कटरीना कैफ है और उसके अलावा अली जफर है। ये मूवी मैंने अभी परसों तरसों जिसका प्रीमियर हुआ उसमें गया था, मैंने देखा था, और अली जफर ने सारे इंडियंस को बूफ कर दिया है। बूफ मतलब से इमरान खान उनके सामने रजनीकांत लग रहे थे। सीरियसली, अली जफर इतना स्मार्ट है कि मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद अली जफर ने जो गाना गाया है वो उससे भी, मधुबाला, वो भी उससे अच्छा। अली जफर का रोल जो है वो कम है, लेकिन जितना रोल है उतनी पावरफुल एक्टिंग है, और वो इन दोनों के बराबर, मतलब इन दोनों से ज्यादा ही अच्छी थी से। इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो अली जफर पाकिस्तान से, इसलिए क्योंकि उसने अच्छी एक्टिंग की है। रोल कम है, छोटा है, सारी फिल्म जो है इमरान खान के ऊपर घूमती है, उनके मसले मसाइल पे घूमती है, फिर कटरीना कैफ पे घूमती है। जो तीसरी छोटी सी कहानी आती है वो अली जफर की आती है, लेकिन अली जफर डिड इट स्प्लेंडेड जॉब माय फ्रेंड, और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। और पूरा पाकिस्तान जो है वो भाई, मैं तो भाई सीरियसली फैन हो गया अली जफर का। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम द मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन, दिस इज धुनकी। एंजॉय दिस लवली ट्रैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने एसएमएस भेज दें 1313 पे, या पे फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, पेज मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात, अपने कहानियां, अपने किस्से हमसे शेयर कर सकते हैं।
अजीब है गिरा दीवाने लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे ते जागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे दिल को हर बशर इश्क दा चंगा है असर कर ले खुद से ही प्यार बंदे है जहां की तुझको खबर खुद से है पर तू बेखबर लले अपनी भी सार बंदे गिरा दीवाने लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे ते जागे धुड़की धुड़की लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे जो भी चाहे तू बढ़ जावे रे है बना मेरा दिल खुदा है खुदा कब मुझसे जुदा खुद को ढूंढे तो उसको पावे रे गिरा दीवाने लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे ते जागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे Right, folks, from the movie मेरे ब्रदर की दुल्हन there was धुनकी 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 धुनकी. Ladies and gentlemen, welcome to Hot FM 105. 2:03 हो चुके हैं और आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं. शर्वन फ्रॉम कैन टुडे इज माई वेरी वेरी सैड डे. क्यों, क्या हो गया भाई, किस बात की आप अफसोस हैं, जरा हमें बताइए. नेहा बख्तियार कहते हैं प्लीज प्ले छमक छलो रावण का. नेहा और उन तमाम लोगों से माजरत जो रावण की हमसे रिक्वेस्ट करें. यार ये गाना मेरे पास नहीं है, सही है, मैं ढूंढ चुका हूँ और अगर मुझे मिला तो मैं चला दूंगा. मुझे आई थिंक ये मिल गया, सही है, तो हम ये गाना चलाते हैं, डोंट वरी. इसके अलावा फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं. सैयदा रेना, आपको पसंद आया गाना, थैंक यू सो मच. इसके अलावा अशर हुसैन, थैंक यू सो मच. अमजद अली कहते हैं मेरा किस्सा ऐड करें. आप अम्माद, आप अपना जो किस्सा है ना वो जिधर आपने ये मैसेज टाइप के इधर ही भेज दीजिए ताकि हम यहाँ पे आराम से आपको पढ़ सकें. आसिफ फटा कहते हैं ये तो पूछें कि ये शो सुनने के बाद किस किस को डर लगता है. लुल, चलें, सही है. हाँ, नहीं डर पता नहीं, सवाल सही है, किस किस को डर लगता है, चलें मुझे बताइएगा. आप लोगों को इस शो से क्या क्या शिकायत है, ये मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से. किसी ने भी आज तक ये नहीं पूछा होगा
लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, द लेट नाइट हॉरर शो जो आप लोग सुनते आए हैं उससे आप लोगों को क्या क्या शिकायत है? अपने शिकायत आप हमसे मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। सिंपल सा है, आप हमें अपनी शिकायत बताइए कि द लेट नाइट हॉरर शो में मुझे ये शिकायत है कि ये होता है, वो होता है, ये होता है। तो हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि उस शिकायत को दूर करें या उसका एटलीस्ट जवाब तो दे सके ना। सही है। फ्रॉम द मूवी रेडी, मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर मैं गाने चलाने पे आया तो ऐसे ऐसे गाने चलाऊंगा कि आप लोग भी कहेंगे ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ए ये मिनट ए ये क्या है। फ्रॉम द मूवी रेडी, दिस इज ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका। खैर, इस मूवी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ही बेकार बकवास मूवी है, लेकिन इस गाने को जो पिक्चराइज, आप इस गाने की वीडियो गौर से देखेगा, आपको कोई 1,500 पौने 2,000 लोग डांस करते हुए नजर आएंगे। अब आप एक सेकंड के लिए सोचें कि आप डायरेक्टर की जगह पे और आप इन 1,500 लोगों को शूट करें, कितना मुश्किल काम होगा। ये कोई 1-1.5 करोड़ का गाना है, इस पे पता नहीं इससे ज्यादा खर्च होंगे क्योंकि सेट्स लगे हुए हैं, गाड़ियां हैं, लोग हैं, कॉस्ट्यूम है, पता नहीं क्या क्या है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो सोचिए एक गाने पे इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन यही गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ है। So ladies and gentlemen, welcome to RFM 105. This is Minhaj Ali Askari with the same program Late Night Horror Show. लेकिन थोड़ा सा आज रीमिक्स वर्जन चल रहा है लेट नाइट हॉरर शो का, तो माजरत, सिर्फ आज के दिन हम इस तरह का प्रोग्राम करें क्योंकि टेक्निकल रीजन से नहीं कर सकते अपना लेट नाइट हॉरर शो। बुध को और नेक्स्ट बुध को और सैटरडे को, इन 2 दिन लेट नाइट हॉरर शो होगा और होगा। महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। 12 मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। लगता है यारा से तुम हो जाएगा आना करे अब
Alright folks, welcome back once again. जो नेक्स्ट वाक़या हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो हमें भेजा है सादिक अली ने, और उनका वाक़या कुछ इस तरह। वो कहते हैं कि ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है मिनाज भाई। एग्जाम्स का टाइम था और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। ये हॉस्टल में रहते थे जो कि मलीर में था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। वो कहते हैं मिनाज भाई, मैंने लाइट बंद करके जैसे ही अपने बिस्तर पे लेटा, मैंने महसूस किया कि रूम का गेट के लॉक होने की आवाज आई, और उसी टाइम उनके बराबर में जो एक स्टूडेंट लेटा हुआ था, जो कि नॉर्दर्न एरियाज से उसका ताल्लुक था, अपनी जबान में उसने गाना शुरू कर दिया। कहते हैं तकरीबन 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी नजर खिड़की की तरफ जो पड़ी, तो उस खिड़की की तरफ उन्होंने एक सफेद लिबास में किसी को देखा। वो कहते हैं वो खिड़की से जो भी वो सफेद चीज थी वो गुजरती हुई उस लड़के के बिस्तर के करीब आके खड़ी हो गई। वो कहते हैं वो लड़का चुप हो गया। वो थोड़ी देर तक उस पूरे कमरे का इर्द गिर्द घूमती रही और फिर गायब हो गई। वो कहते हैं कि मुझे इतना पसीना आ रहा था और मैं इतना परेशान हो चुका था कि मुझे याद नहीं आ पा रहा था कि मैं कौन सी आयत, कौन सी सूरत पढ़ूं ताकि मुझे सुकून मिले। लेकिन कहते हैं कि वो उस कमरे में घूमती रही चीज सफेद लिबास में जो थी और फिर गायब हो गई। कहते मैंने उठ के दरवाजा चेक किया तो वो कमरे का दरवाजा असल में लॉक हुआ था। कहते मुझे 5 दिन तक 103 बुखार रहा, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये कहानी शायद बहुत सारे लोगों को झूठी लगे कि ये सच्ची है। असल बात ये है कि वो मैं अपने शो में अक्सर ये कहता रहता हूं कि मजाक उड़ाना और मजाक करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। हम पाकिस्तानियों को शायद इन दोनों जुमलों के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम। मजाक करना बहुत अच्छी चीज है, मजाक उड़ाना उतनी ही घटिया और बकवास चीज है। आप अपने वालिदैन से मजाक करते होंगे लेकिन अपने वालिदैन का मजाक उड़ाते हैं? मजाक उड़ाने से किसी का दिल दुख सकता है, दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। शायद आपके इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स हों, उन्हीं को देख लीजिए और उनका रिजल्ट देख लीजिए। किसी का मजाक या किसी के वाक़े का मजाक न उड़ाइए, क्योंकि क्या पता अगले ही लम्हे आपका मजाक बन जाए। मुझे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं शो के हवाले से कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और उनकी जो कहानी होती है वो बहुत लंबी होती है और फेक होती है, तो आप उनकी लाइंस क्यों नहीं काट देते? जनाब, उनका भी उतना ही राइट है जितना आपका राइट है कॉल करने का। अगर वो फेक है या झूठी है तो वो उनके खाते में, उनके हिसाब किताब में जाएगी। मैं और आप ये जज नहीं कर सकते कि वो झूठी है कहानी या सच्ची, क्योंकि हमें हर वो चीज सच्ची लगती है जो हमारे साथ गुजरी होती है, और जो दूसरे के साथ हो वो झूठी है। कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी गलत बात है, दोगलेबाजी। तो अपने अंदर की दोगलेपने को निकाल दीजिए। हम सबके अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हम जजमेंटल होते हैं। हर दूसरे के बारे में फौरन अपनी एक राय क्रिएट कर लेते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके मजहब के बारे में, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स के बारे में। ना करें, ना करें। आप अपने लिए ही गड़ा खोद रहे हैं जिसमें आप खुद गिर जाएंगे।
तो जो भी वाकयात, जो भी कहानियां, जो भी किस्से आप लोग के साथ पेश आए, बिला झिझक, बिना किसी से डरे हुए आप हमारे शो में हमसे शेयर कर सकते हैं। चाहे ईमेल करें, चाहे कॉल करें, चाहे SMS करें, चाहे फेसबुक पे लिखें, लिखिए जरूर। कोई आपका मजाक उड़ाता है, उड़ाने दीजिए, उनको नहीं पता सच्चाई क्या है। अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आया है तो आज सिर्फ 3 तरीके हैं जिसके जरिए आप लोग अपने वाकयात हम तक भेज सकते हैं। सबसे पहला है SMS करें अपने मोबाइल के, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दे 1313 पे। या फिर शो के हवाले से जो भी शिकायत है, लेट नाइट हॉरर शो के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करनी है, वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं SMS के जरिए, जो कि मैंने आपको तरीका बताया। इसके अलावा फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ईमेल कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। Ladies and gentlemen, my name is Minhaj Ali Askari. You guys are tuned to Hot FM 105 and this is the Late Night Horror Show. Alright, आज का शो मुख्तलिफ है, वक्तन फवक्तन चेंजेस आती रहेंगी, चेंजेस होती रहेंगी। कभी लेट नाइट हॉरर शो टिपिकल शुरू हो जाएगा, कभी नॉर्मल सा शुरू हो जाएगा, कभी गाने आ जाएंगे। तो आप जरा डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा। हम दोनों चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मेजर जो मुझसे लोगों को शिकायत है वो ये है कि आप अपने शो में जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है ये बहुत चलाते हैं। तो भाईजान, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं इसलिए चलाता हूँ क्योंकि आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि ये वाहिद रेडियो इंडस्ट्री पे वाहिद, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वाहिद शो है जो 2 घंटे बगैर गाने के चलता है, बगैर किसी ऐड के चलता है। तो सोचिए, ना तो गाना है, ना कोई ऐड है, ना बीच में ये आपको सुनने को मिलता है यू गाइज आर ट्यून इनटू हॉट FM 105 फलाना ढिमकाना। तो मुझे सांस लेने का, मुझे पानी पीने का, मुझे सुकून जरा लेने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं पूरे 120 मिनट तक आप लोगों से बात करता हूँ, फोन कॉल्स उठाता हूँ, SMS पढ़ता हूँ, फेसबुक। मेरे पास 4 चीजें होती हैं, सही है, जिसके जरिए मैं अपने लिसनर्स तक इंटरेक्ट करता हूँ। नंबर 1 है SMS 1313 पे, वो मुझे पढ़ना होता है। उसके बाद फिर मुझे 1110000105 जो नंबर है उस पे अपने यूजर्स को ऑनर लेना होता है। फिर फेसबुक पे जो पेज है उसको देखना होता है, फिर ईमेल्स को देखना होता है। ये जो 4 चीजें हैं ये मैं सिर्फ यूजर्स, लिसनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर मेरे पास इतना बड़ा एक पैनल होता है जिसको मुझे ऑपरेट करना होता है, माइक होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो कोई मैं 1 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो मैं 1 सेकंड में कोई 15 चीजें ऑपरेट कर रहा था एक साथ। तो मुझे थोड़ा वक्फा चाहिए होता है सांस लेने का, बैठने का सुकून से। तो कभी कभी इसलिए मैं थोड़ी 1-1 मिनट का बैकग्राउंड म्यूजिक इसलिए भी चला देता हूँ ताकि मुझे तो जरा रेस्ट मिले ना। अगर मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा मैं थक जाऊंगा। फिर मुझे कॉल्स लेनी होती है तो उनकी स्कैनिंग हो रही होती है, उनसे बात हो रही होती है, तो इस तरह इसलिए देर हो जाती है। तो अब शायद आप लोगों को पता चल गया कि क्यों देर हो जाती है। इसके अलावा मुझसे लोगों ने पूछा कि आप जब शो करते हैं तो आपके अपने स्टूडियो में बड़े चीजें हो रही होती हैं, आवाजें आ रही होती हैं, तो क्या ये सच्ची होती हैं? आजकल नहीं, आजकल की बात नहीं करते, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ज़ैनुल आबदीन जो हमारे एक प्रेजेंटर हैं वो भी इस शो में बैठ चुके हैं, जासिम भी इस शो में बैठ चुके हैं और रिजवान जदी भी इस शो में शायद आ चुके हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारे लिसनर्स को हमने मौका दिया था कि वो अपने वाकयात हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ बैठ के लोगों के साथ शेयर करें। आप उनसे भी पता कर सकते हैं। मैं जब शो कर रहा होता हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं होता इस पूरे स्टूडियो में। कभी कभी हमारी टीम्स भी मौजूद होती है, हमारे इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, वो तक परेशान होते हैं कि ये शो जैसे ही शुरू होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। अभी जो लास्ट प्रोग्राम मैंने लास्ट सैटरडे किया है, जैन जो हमारे आरजे, उनका मुझे मैसेज आया कि यार ये तुम्हारे शो में कैसी आवाजें आ रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप जैन से भी कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो कोई मैं झूठ या कोई इसमें फेक बात नहीं है। फेक होगी तो क्या होगी, 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन चलेगी, कोई ना कोई स्टेशन पे आके भांडा फोड़ देगा, क्या है तो झूठा प्रोग्राम है। लेकिन देखिए 1 साल तक तो कोई झूठ नहीं था ना, इसलिए कोई भांडा नहीं फूटा।
ना ही कोई टीआरपी का सीन है, ना ही कोई मुझे शो को हेट या फ्लॉप करने का शौक है। आपको पसंद आ रहा है इसलिए आप सुन रहे हैं, आपको पसंद नहीं आएगा आप नहीं सुनेंगे। मैं आपको गन पॉइंट पे तो नहीं बैठ के शो सुना सकता। तो जी हाँ, और फिर तीसरा ये कि आपको डर नहीं लगता। डर लगता है, लेकिन अगर इस चीज को मैं अपने सवार कर लूंगा तो ज्यादा डर लगेगा। मैंने आपको एक हल बता दिया, ज्यादा सर पे सवार ना। सही है। अच्छा, मुदस्सिर भाई कहते हैं मूड अच्छा है, मूड अच्छे से चेंज करते हैं मिनहाज भाई। जी हाँ, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं सैड से हैप्पी और हैप्पी से डरावना 2-2 सेकंड में शो चेंज कर सकता हूँ। दिस इज माय स्पेशलिटी एक्चुअली। उसके अलावा सेलिना वॉटसन कहते हैं मिनहाज जी आपने साइलेंट हिल मूवी देखी है? बहुत हॉरर मूवी है, प्लीज सबसे पूछें इस मूवी के बारे में। साइलेंट हिल मैंने तो नहीं देखी हुई, क्या किसी और ने देखी हुई? अगर देखी हुई तो मुझे बताइए कैसी है। इसके अलावा हमजा मीर कहते हैं या परमानेंटली शो हफ्ते में 2 दफा कर दें। देखिए हाँ, ये भी सवाल मुझसे लोगों ने किया कि हफ्ते में 2 दफा ये शो क्यों नहीं होता। भाई हफ्ते में 2 दफा करना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। सही है, ये शो इतना मुश्किल है करना कि एक तो ये शो कोई भी नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मुझे गारंटी, मैं 110% के साथ कह सकता हूँ, ये जिस तरीके से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो सिर्फ मुझे ही पता है और वो ऑफिस के या किसी और प्रेजेंटर को नहीं पता। इसके अलावा फिर टाइम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, इसलिए हमने इसको बुध से हफ्ते की जगह चेंज किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से सुन सकें, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। सिर्फ इस वजह से हम सैटरडे को करते हैं। मंगल, पीर, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता हम नहीं, हफ्ते के अलावा हम नहीं कर सकते और किसी भी दिन, क्योंकि ना तो मैं शो कर रहा होता हूँ मजीद, ना ही ज्यादा आवाम सुन सकती है उस दिन। बुध जुमेरात को जो मेरे शोज होते हैं वो दूसरे होते हैं, वो अलग प्रोडक्शंस हैं, वो अलग प्रोग्राम प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको हम छेड़ नहीं सकते। चैनल की पॉलिसी है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स हैं, पैसा भी तो कमाना है ना जी, पैसा नहीं कमाए, पूरी इंडस्ट्री कमा रही है, हम नहीं कमाए हैं। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। बहुत बोरिंग बातें मैंने कर ली। सो फ्रॉम द मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एकॉन विद चमक चलो। अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाते लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दे 1313 पे। या फिर फेसबुक पे जाइए तो लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया है जिसको आप कहते हैं कि काफी डरावना, काफी खतरनाक था, तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम पे जितने भी सवालात आपको करने हैं शो के हवाले से वो कर सकते हैं, और मैं इधर मौजूद हूँ आपके जवाब देने के लिए। Just let me know. You can be my chumachallo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chumachallo. Kaisa sharmana aaja nach ke dikha de. Aa meri hole aaja pari raji raale. Aa meri yakkiyon ki laale. Aa pura nakkile hi ka. Wanna be my chumachallo. चमक चलो, तेरी पिक्चर का मैं हीरो, ये भी तुम्हें दिल मुझको दे दो, ये कभी माँ चमक चलो। Shawty, I'm gonna get ya, you know I'm gonna get ya, maybe I'll even let you be my चमक चमक चलो। कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दो, आ मेरी होले आजा पारी राजी राले, आ मेरी यक्कियों से लाले, आ पूरा नक्कीले ही का। Wanna be my चमक चलो, wanna be my चमक चलो, wanna be my चमक चलो।
from the movie Ravan, there was Chammak Challo and there was Akon. Akon जो कि बड़े मशहूर एक सिंगर हैं, आजकल की यूथ उनको बहुत फॉलो करती है. अजीब सी बात ये कि ये असल में अंग्रेज हैं और इन्होंने पूरा पंजाबी ट्रैक गाना गाया है. इट्स अमेजिंग. मुझे तो काफी हद तक जारी लगता है Akon अपना ये अपनी कहीं हॉक्सवे की तरफ रहता है कहीं. Ladies and gentlemen, welcome to Hot FM 105. 2:28 हो चुके हैं. मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं wanna be my छम्मक छल्लो. मी मुझसे पूछ रहे? नहीं भाई, नहीं, मैं पहले ही किसी का छम्मक छल्लो हूँ. आप किसी और को छम्मक छल्लो बना ले. सही है. डैशिंग काशिफ तनोली कहते हैं यार मिनाज भाई मैंने फेसबुक पर 100 मैसेजेस कर दिए, आप पार्टी ही नहीं हो. ओरे आप पढ़ते नहीं हो. अच्छा लीजिए हमने पढ़ लिया आपके लिए भाई. नदीम मलिक और तो और मिनाज भाई छम्मक छल्लो सॉन्ग ने शो को रॉकिंग बना दिया. ओके थैंक यू. हिफ्जा हुसैन कहते हैं शो अच्छा जा रहा है. कहाँ जा रहा है? बारिश में भीग तो नहीं जा गई? मोहम्मद अरसलान कहते हैं व्हाट द हेल इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड टू स्केरी स्टोरीज. यार अरसलान मैं 25वीं बार ये बता रहा हूँ, आज हम लेट नाइट हॉरर शो नहीं कर पा रहे, समझे? नहीं बताऊंगा मैं, आएंगे थक गया. कुमेल आपसे कहते हैं व्हाई डोंट यू टेक इंटरनेशनल कॉल्स मिनाज भाई. इंटरनेशनल कॉल्स की आपने अच्छी बात की. ये हमारा जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है इंशाल्लाह ताला द लेट नाइट हॉरर शो का, उसमें हमने पूरा प्लान किया हुआ है कि इंटरनेशनल लिसनर्स को, इंटरनेशनल कॉलर्स को अपने साथ शामिल करें, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो कनाडा से हो, XYZ कहीं से भी हो. जहां पे भी हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है उनके लिए भी एक फैसिलिटी यूज की जाएगी. इसके अलावा स्काइप बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, जो टेक्नोलॉजी है फोन की, तो वो हम अपने शो में शामिल करेंगे ताकि हम, मुझे बहुत सारे लोगों से ये पता चला है कि इंडिया, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इस तरह के वाकयात बहुत सारे होते हैं. और यूके, जो कि यूके की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इमारतें बहुत पुरानी हैं, तो उसके बारे में हमें बड़ी न्यूज मिली. तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ के यूजर्स, वहाँ के लिसनर्स को ऐड करते रहें और उनको भी स्टॉक करें. जब सीजन 2 शुरू होगा लेट नाइट हॉरर शो का, उसमें फिर हम उनको शामिल करेंगे. इसके अलावा एक बड़ी वियर्ड सी मेरे पास इंफॉर्मेशन है देने के लिए. वो ये है कि अमेरिका में एक 18th सेंचुरी में एक स्टेट थी, उधर एक साइकियाट्रिक मेंटल हॉस्पिटल आप कह लें था, और वो फिर अचानक से बंद हो गया था. रिसेंटली उस पे एक मूवी बनी है. किया ये कि 4-5 नौजवानों ने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया और उन्होंने उस बिल्डिंग को खुलवाया. वो बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई थी, 100-150 साल से बंद पड़ी हुई थी. वहां ना तो कोई कंस्ट्रक्शन होती थी, ना कोई जाता था, ना कोई आता था. बस उस बिल्डिंग के बारे में वाकयात बड़े थे कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ ये होता है, वो होता है, ये होता है. तो उन 5-6 नौजवानों ने क्या किया, वो कैमरा लेके गए. फिल्म मेकर्स थे तो उन्होंने कैमरे वहां पे जाके फिक्स किए, हर कमरे में, हर जगह पे कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे. ये एक फिल्म की सूरत में हमारे सामने पेश की गई. इस फिल्म का नाम है ग्रेव एनकाउंटर्स. सही है. और ये मूवी अभी भी अच्छे प्रिंट में नहीं आई है. जैसे ही अच्छे प्रिंट में आएगी मैं सबको बता दूंगा, सब देखें. बुरे प्रिंट में कोई सी भी मूवी ना देखिए, स्पेशली हॉरर फिल्म बुरे प्रिंट में देखना अजाब हो जाता है, पता नहीं चलता. तो याद रखिएगा, ग्रेव एनकाउंटर्स जरूर देखने वाली मस्ट मूवी है. अगर नहीं देखी तो फिर पू हो जाएगी आपकी. सही है. 2:30 हो चुके हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं, यार मुझसे कोई सवाल और नहीं कर रहे लोग, यही सवाल कर रहे हैं कि आप इतने लंबे लंबे म्यूजिक चला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कहानी असली होती है कि नहीं होती, तो जरा और भी पूछे ना भाई. महा कहती है फ्रॉम कराची, मिनाज भाई आपने सॉन्ग्स तो बड़े अच्छे लगाए, आप इतना बोलते हैं हो तो थकते नहीं? नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ. नहीं माँ, थकने की क्या बात है, ये हमारा काम है, इसी वजह से तो हम स्टैंड आउट करते हैं आप लोगों से, आप लोगों के बीच में. अली कहते हैं यार आप कौन से चैनल पे फ्राइडे थर्सडे को शो करते हैं? अली मैं कौन से चैनल पे, मैं हॉट 105 पे, जिधर आप अभी सुन रहे हैं. यार आप किसके छम्मक चल्लो? अरसलान, ओ हम तो हैं बहुत सारे के छम्मक चल्लो. हम कटरीना कैफ के और करीना कपूर के छम्मक चल रहा. जस्ट किडिंग. आदिल मिनहाज भाई मुझे सखी हसन के जल्दी से हॉरर किस्से सुना दो, बिकॉज आई लिव नियर टू सखी हसन.
सखी हसन के बारे में जो हमें पता चला था वो ये पता चला था कि सखी हसन का जो कब्रिस्तान है, सही है, उस जगह की तरफ बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं लोगों के साथ जब वो रात को सफर करते हैं। जैसे कि एक हमें वाकया बताया था सखी हसन का कि रात के 2 बजे एक साहब अपनी बाइक पे सफर कर रहे थे और जैसे ही वो उस रोड पे पहुंचे सखी हसन वाली, तो उन्होंने वहां पे एक औरत को खड़े हुए देखा जो कि बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे लिबास में ड्रेसअप हुई भी वहां खड़ी हुई थी। अब उन साहब की क्या इंटेंशंस थी, क्या उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अपनी बाइक रोकी और उस औरत को लिफ्ट दे दी, चूंकि उस औरत ने लिफ्ट मांगी थी। वो कहते हैं कि उन्होंने उसको लिफ्ट दी, वो औरत बैठी और वो अब उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। कहते हैं थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि बाइक जो है वो काफी हैवी हो गई है। वो मतलब उन्होंने पहले इतना नोटिस नहीं किया। जैसे वो 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि पलट के जब देखा तो वो औरत एक्चुअली एक बकरे की सूरत में उस बाइक पे मौजूद थी। तो देयर वाज एक्चुअली, और कहते हैं कि उस बकरे के बच्चे को उन्होंने फौरन जमीन पे फेंका और वहां से भागे। और जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने पलट के देखा तो वो बकरा फिर उस औरत की शक्ल में चेंज हो चुका था और वो जोर जोर से हंस रही थी। तो ये एक वाकया हमारे साथ शेयर किया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैलिड मुझे लगा था सखी हसन का, जो कि बहुत कॉमन भी है, वो ये था कि एक औरत नजर आती है उस रोड पे रात को ही, लेट नाइट, और वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। और जब लोग उसको लिफ्ट दे देते हैं तो वो यूजुअली या तो मर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है। और लोगों ने ये देखा है बाकायदा कि जब वो औरत लिफ्ट लेती है, लिफ्ट उसको मिलती है, तो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है एक भयानक खौफनाक शक्ल में, जिसकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट होता है। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने बताया। उसी तरीके से गुलिस्तान जौहर, कारसाज, शारे फैसल, क्लिफ्टन, सी व्यू, इनके शाहराहों के बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। पीसीएचएस के बारे में भी बहुत मशहूर है, लेकिन पीसीएचएस में रोड्स, मेन रोड्स के बारे में नहीं, घरों के अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं अपना अगर एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूं, मैं कुछ अरसे गुलिस्तान जौहर में भी रहा हूं, जहाँ मेरी नानी का घर था। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं अपनी नानी के साथ शिफ्ट हो गया था। तो वो 1 यूनिट बैंगलो था। ऊपर वाला पोर्शन में हम रहते थे, यानी कि मैं, मेरी वालदा और मेरा भाई, और नीचे मेरे मामू, मेरी नानी और नाना। मैं उस जमाने में भी रेडियो शोज करता था दूसरे चैनल से। रात के शोज करके मैं वापस अपने घर की तरफ गया। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। मैंने गाड़ी लॉक की, घर में दाखिल हुआ, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गया, अपने कमरे में जाके बैठा, लाइट वाइट जलाई, कपड़े चेंज किए, गाने लगाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगने लगी, तो मैं कमरे से निकल के अपने किचन की तरफ गया। अब किचन में मैं बैठ के कुछ खाना, फ्रिज में जैसे होता है ना, फ्रिज में देख रहे होते हैं, चीजें गर्म कर रहे होते हैं अवन में जाके। तो मैंने चीजें निकाली, उनको प्लेट में समेट के अवन की तरफ रख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे से कोई बच्चा भागता हुआ गया है, और बाकायदा मुझे नजर आया है, लिटरली मुझे नजर आया बच्चा, क्योंकि मेरी शक्ल बिल्कुल अपने दरवाजे की तरफ थी कमरे के। तो मेरे कमरे के बिल्कुल ऑपोजिट किचन था। तो मैं जिस जगह पे खड़ा होता वहां से मुझे अपना कमरा क्लियर नजर आता था। तो मुझे बाकायदा नजर आया कि एक बच्चा भागता हुआ गया जो कि सीढ़ियों से नीचे की तरफ गया। मैं समझा शायद मेरा कजन, जो कि मेरे मामू का बेटा था, वहां रहता है, मैं समझा शायद वो जागा हुआ है रात के 3 बजे। तो मैं परेशान हूँ, मैंने कहा ये क्यों जागा हुआ है?
और ये ऐसे, और वो रोता हुआ, जोर से रोते हुए, रोने की आवाज नहीं आती, रोता हुआ बनता, तो वो वैसे जाता। तो मैं समझा शायद मेरा कजन है जो रोता हुआ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैं पीछे पीछे गया, आवाज देता कि माज, उसका नाम माज था, माज माज माज। मैं नीचे आखिरी सीढ़ी तक गया हूँ, नीचे अंधेरा था और मुझे सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। मैं समझा शायद ये डर गया बच्चा, क्या हो गया। मैंने नीचे जैसी लाइट खोली तो वहां पे कोई नहीं, और वो रोने की आवाज बंद हो गई। मैं वहम गुमान में भी नहीं थी मेरे साथ कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी नानी का कमरा खोला, वहां पे मेरी नानी नाना सो रहे। मैंने कहा यार ये क्या सीन है अजीब सा। मैंने पूरा नीचे के घर छाना, वहां पे कोई बच्चा नहीं, कोई माज नहीं, कोई मेरा कजन नहीं। अच्छा, उस वक्त तक मुझे थोड़ी सी हिंट हो गई थी कि यार कुछ है, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे एक दफा बताया था कि यहाँ पे कुछ वाकयात हुए हैं, उनके साथ पेश आए। खैर, मैं वापस ऊपर गया, अपना खाना वाना गर्म किया, कमरे में चला गया। अब कमरे में बार बार मुझे, अब ये मुझे याद है 4 या 5 बजे थे, मैं मूवी देख रहा था। तो बार बार मुझे अपने, आप जैसे अभी आप लोग अपने कमरे में मौजूद होंगे, आपका जो मेन दरवाजा है उसको गौर से देखिए। उस दरवाजे के नीचे एक थोड़ी सी जगह बची हुई होती है जहां से आपको दूसरे कमरे की लाइट नजर आ रही होगी। अब 1 मिनट के लिए आप ये देखिए कि उसमें आपको मूवमेंट अगर नजर आना शुरू होगी, किसी के चलने की, किसी के कदमों की, किसी के भागने की, शैडोज नजर आएंगे। दिन में होते हैं तो समझ में भी आता है, रात के 12 बजे भी होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन रात के 5 बजे हों तो समझ नहीं आता। और उस वक्त हो जब आपको मालूम है कि बाहर कोई नहीं है, सब सो चुके हैं, और ये आपको बार बार कदमों की निशान नजर आ रहे हैं, कोई जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा होने लगा, मैं समझा शायद कोई होगा, मैंने इतना सोचा ही नहीं था उस वक्त कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जाके मुझे एहसास हुआ, कब, तब मेरे कमरे का दरवाजा नॉक होना शुरू हुआ। बाकायदा कोई नॉक करता था, मैं दरवाजा खोल के चेक करता था कि कौन है, कोई भी नहीं होता था। ये 2-3 बार मेरे साथ हुआ। उसके बाद फिर मैंने कमरे में अपनी लाइट बंद की, गाने बंद किए, मूवी बंद की, अपना कमरा लॉक किया, खामोशी से अपनी वालदा के कमरे में गया, वहां जाके उनके बराबर में लेट गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने मामू से पूछा कि क्या माज उठा था। कहते नहीं, माज तो रात को सो रहा था। उसके बाद मैं अपनी वालदा के पास गया, ने कहा अम्मी आप क्या रात को उठी थी जो देख रही थी? अम्मी कहा नहीं, मैं भी नहीं उठी। फिर मैंने अपनी नानी को जाके वाकया बताया था, तो नानी ने मुझे कहा था कि हाँ इस तरह का कुछ होता रहा है, होता है। तो ये गुलिस्तान जौहर के घर का मैं अपने साथ हुआ वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन टाइम की वजह से मैं हमेशा से इस वाकये को शॉर्टकट में बताता था, लेकिन आज मैंने इसको पूरा बयान किया आप लोगों के साथ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग मजाक उड़ाते तो मजाक ना उड़ाएं। मैं भी बहुत मजाक उड़ाता था, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जितना आप लोग मजाक उड़ाते होंगे ना अभी वाकयात का, मैं उससे 200% ज्यादा मजाक उड़ाता था। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, फिर मुझे उस बात की इंटेंसिटी का पता चला कि इंसान के साथ जब ये वाकया होता है तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका होता है, उसका वहम, उसका दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो चुका होता है। 2:40 हो चुके हैं ख़वातीन हज़रात। माय नेम इज़ मिनहाज अली अस्करी, दिस इज हॉरर एफएम 105। अगर आप लोग अपने वाकयात या लेट नाइट हॉरर शो के बारे में कोई भी एसएमएस करना चाहते हैं, कोई भी शिकायत, कोई भी सवाल लेट नाइट हॉरर शो के हवाले से, तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं तो लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे, या फिर हमें एसएमएस कर, या फिर हमें फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर djminhaj@radio.fm पे अपने वाकयात, अपने सवालात की फॉर्म में ईमेल करके भेज सकते हैं। वेलकम बैक टू the funny side of the show, ladies and gentlemen. Now moving on towards the next track from the movie Bodyguard, जिसके गाने के बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तेरी मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। अजीब सा गाना है, लेकिन चले, अब आप लोगों को पसंद है तो क्या कर सकते हैं। दिस इज द रीमिक्स वर्जन, तो लिसन टू इट। बॉडीगार्ड मूवी मैंने देखी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सलमान खान, और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सलमान खान का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना जबरदस्त लगता है।
हर चीज इस बंदे की करिश्मेटिक है, हर चीज। मतलब ये डांस करेंगे तो अपनी मर्जी का करेंगे, एक्टिंग करेंगे अपनी मर्जी की करेंगे, जैसे भी करेंगे वो एक कल्ट बन जाती है। इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ट्रैक, दिस इज अ रीमिक्स वर्जन ऑफ तेरी मेरी। एंजॉय दिस लवली ट्रैक। दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प के रही है मिट जाए, फासले तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। पाए
तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड। ये मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि शायद XYZ कोई भी फिल्म में एक्ट कर सकता है जिस तरह सलमान खान ने एक्टिंग किया। यस यस, अजीब से बॉडीगार्ड बने, लेकिन आई जस्ट लव दिस एक्टर। इस बंदे की जब अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैं हिंदुस्तान गया था, सही है, तो मैंने वहां पे बहुत सारे, मैं क्लब में गया था जिसका नाम अग्नि था, दिल्ली में वो क्लब है, और वहां पे वो सबसे ज्यादा एक हाई फाई क्लब है जहाँ पे सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, सारे बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं। तो ये वो जगह, ये वो क्लब था जहाँ पे सलमान खान हर हफ्ते जब भी वो हिंदुस्तान में होता है तो वो आते हैं। तो वहां के मेरे लोगों से मुलाकात हुई, तो वहां पे वो बता रहे थे कि इस बंदे का जो करिश्मा है पूरे हिंदुस्तान में, वो आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त से 10,000 गुना ज्यादा है। सलमान खान वहां पे सलमान खान नहीं, सलमान भाई है उसे। शाहरुख खान है, आमिर खान है। पूरा हिंदुस्तान जिसको भाई कहते हैं वो सलमान भाई है। संजू दादा भी हैं, लेकिन सलमान भाई जो है वो भाई हैं। सलमान भाई की खासियत क्या है? सलमान भाई शूट अगर 8 बजे की होगी ना, सुबह 8 बजे, तो वो रात के 9 बजे आएंगे। लेकिन कोई भी सेट पे जो बंदा होगा उसके चेहरे पे इतनी सी भी परेशानी, इतना सा भी गुस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सलमान खान की एक सबसे बेस्ट आदत जो है वो ये है कि वो अपने साथ पूरे क्रू का खाना अपने घर से बनवा के लाते हैं। उनकी वालदा जो है वो बनाती है खाना, और वो सबके साथ बैठ के दस्तरखान बिछता है, जमीन पे बैठ के पूरे क्रू के साथ सल्लू भाई जो है वो खाना खाते हैं। सल्लू भाई, सलमान भाई जो है वो सबकी मदद करते हैं, बेधड़क मदद, मतलब लाखों रुपए की मदद कर देते हैं। कुछ फैमिलीज हैं जो इनके पैसों पे चल रही हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ खवातीन हैं जो जॉब कर रही हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, जो पढ़ रही हैं, इनकी शादियां हो चुकी हैं, वो सलमान भाई ने सब नहीं किया। तो ही इज लाइक एक मसीहा के तौर पे हिंदुस्तान में लोगों के लिए। एंड मुझे जाके इतना फख्र फील हुआ था कि यार है तो बंदा मुसलमान ना। जब आप बाहर जाते हैं अपने मुल्क से तो आपको पाकिस्तान के लोगों की अहमियत पता चलती है, और जब आप एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज में, मेजॉरिटीज में नहीं, तो आपको इस्लाम, अपने मजहब के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज्यादा एहसास होता है। और वहां पे अगर कोई एक ऐसा बंदा आपको नजर आए जिसको लोग पूछते हैं, बाकायदा बात करते हैं, तारीफ करते हैं, प्यार करते हैं, और वो आपके ही आपसे ही ताल्लुक रखता हो, तो एक अलग ही बात हो जाती है। well, ladies and gentlemen, 2:50 है। इसी तरीके से हम सब भी हो सकते हैं हर किसी के लिए भाई, अगर हम चाहें तो। मदद करना सबके बस में है, सब कर सकते हैं मदद। ये तो बकवास बात हो गई ना कहना कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरे पैसे नहीं। जरूरी नहीं कि मदद जो है वो पैसे से हो, मदद टाइम से भी हो सकती है। आप किसी को वक्त दे दें, किसी के साथ बात कर लें, किसी से शेयर कर लें फीलिंग्स, किसी की बातें सुन लें, किसी को गुस्सा आ रहा हो उसको गुस्सा सुन लीजिए ताकि भाई वो सही हो जाए। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे अपनी ईगोज में रहते हैं ना कि हाँ। खैर, हम बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की तरफ। अरसलान सलाम मिनाज भाई, द मूवी यू जस्ट टॉक्ड अबाउट ग्रेव एनकाउंटर्स, आई सॉ दैट मूवी अ वीक बिफोर, यू सेड दैट द प्रिंट येट इज नॉट गुड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं मिला था। फैसल भाई, आज आपके शो का नाम जुगाड़ शो हो गया। जुगाड़ शो हो गया? हाँ, जुगाड़ शो है ये भाई, सही है। उसामा अली, प्लीज ड्रेन मत, ऐसा नहीं होता है, प्लीज डराए मत, ऐसा नहीं होता है, इंसान के अपने अंदर का वहम होता है। आपने जो स्टोरी बताई है मैं और ज्यादा डरने लगा हूँ। नहीं जी, देखिए डराने की बात नहीं है, हर चीज इस दुनिया में होती है। ऐसी ऐसी मखलूक, ऐसी ऐसी दुनिया इस दुनिया में ही मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है कि हमें हर चीज के बारे में मालूम नहीं है। जो खुदा ने तख्लीक किया है उसके बारे में इंसान को हर चीज के बारे में मालूमात नहीं है। कुछ चीजों पे पर्दा रखा गया है, तो ये भी उनमें से एक है। अरिशा, प्लीज गुलिस्तान जो ब्लॉक बी बताइए, ब्लॉक के बारे में बताइए। आई ऑल्सो लिव इन ब्लॉक 1 और हमारे घर के बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं और अभी भी कोई है, कंफर्म है। आई एम रियली अफ्रेड आफ्टर 12 है। क्या है मतलब अरीशा, बताइए जरा, आप क्लियर खोल के बताइए।
तो आपने हमें भी डरा दिया कि क्या है कोई है मतलब मुझे लग रहा है कोई सीरियल किलर आपके घर में घुसा हुआ है, बता दीजिए भाई। नेहा सिद्दीकी कहते नहीं, आई वांट लेट नाइट हॉर्स शो बैक। अरे भाई लेट नाइट हॉर्स शो आएगा, कहीं नहीं जा रहा, फिक्र ना करें। अच्छा, मैं एक बात रिवील करने वाला हूँ आज। अभी तक तो बहुत सारे लोग पता नहीं भाग गए, कहोगे यार पता नहीं क्या बकवास प्रोग्राम हो रहा है, क्या ये है। तो एक दफा जब मैं शो कर रहा था तो मैं लिटरली शो छोड़ के चला गया था। शायद आपको याद हो, आधे पौने घंटे का शो हुआ था और मैं शो से गायब हो गया था, ये कह के कि टेक्निकल रीजंस की वजह से शो नहीं हो सकता। उस दिन मैंने झूठ बोला था। मैं आज सबके सामने ऑनरी बात कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन जो हो चुका था और जो हो रहा था वो मैं ऑफिशियली बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि वो उस दिन लिटरली मुझे खौफ, डर होता है ना कि आपको डर लगता है। मैंने अपने हमारे जो गार्ड हैं उनको बोला और एक बेचारा इंजीनियर है उसको बोला कि यार मुझे लिफ्ट तक छोड़ के आओ, क्योंकि उस दिन इतना कोई खौफनाक सीन हो चुका था कि आई वाज रियली अफ्रेड लिटरली। इसके अलावा जो थर्ड फ्लोर के बारे में आपने एक न्यूज सुनी थी हमारे शो में, मुख्तलिफ प्रेजेंटर से भी सुना होगा, वो कहानी, वो वाकया दुरुस्त है। और वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, वो पूरी बिल्डिंग के साथ होता है, सब बिल्डिंग परेशान है उससे। इसके अलावा एक अजीब, अच्छा ये फनी साइड है, सही है, फनी भी है और डरावनी भी है। मैं जब रात को शो करता था, पहले की बात करें, जून जुलाई में ये मेरे साथ अक्सर होता है कि रात के 3-3:30 बजे शो खत्म करके मैं निकलता हूँ ऑफिस से, तो मैं फौरन नहीं निकलता, मैं आधे पौने घंटे बैठता हूँ स्टेशन पे, जरा पानी वानी पिया, ठंडा रिलैक्स हुआ, उसके बाद जो है मैं 4 बजे निकलता हूँ। तो 4 बजे जो है हमारे यहाँ जो बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, लाइट जाती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट बंद हो जाती है तो लाइटें बंद हो जाती हैं, लिफ्ट लाइट सब बंद हो जाती है और हम 7th फ्लोर पे होते हैं। 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाना एक आजाब हो जाता है। इससे पहले ये शो कोई नहीं करता था, सिर्फ एक सेगमेंट किया करते थे नाज़िर ज़ीशान अपने शो में। उन्होंने शायद कभी आपको नहीं बताया होगा, लेकिन उनके साथ जो वाकया होता उसके बाद से इन्होंने ये शो बंद कर दिया था, ये सेगमेंट करना बंद कर दिया था। वो हुआ ये था कि नाजिया और ज़ीशान अपना यूजुअल शो करके, सैटरडे का जो फनी शो होता था उनका वो करके नीचे उतर रहे थे। तो नाजिया नीचे थी और उसने कहा ज़ीशान को कि ज़ीशान तुम आ रहे हो? ज़ीशान ने कहा मैं आ रहा हूँ। तो नाजिया चल पड़ी, नाजिया चलते चलते वो एक फ्लोर उतर गई। अब उनको आवाज आ रही है टक टक किसी के चलने की, तो समझी शायद ज़ीशान है। वो 6th फ्लोर पे उतरी, 5th पे उतरी तो वो आवाज टक 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 तेज आने लगी। अब वो नाजिया आवाज दे रही, ज़ीशान आवाज देना है, ज़ीशान साहब आवाज ही ना दे। अब वहां पे जो है नाजिया की हो गई है। उसके बाद मुझे पूरा वाकया याद नहीं आ रहा सही तरीके से कि नाजिया ने फिर ज़ीशान को कॉल की, तो ज़ीशान ने फोन उठाया तो ज़ीशान से पूछते कहाँ हो? कहते मैं तो अभी स्टूडियो में हूँ, मैं एक रिकॉर्डिंग करवा रहा था, तुम्हें मैंने बोला था रुकने को, तुम रुकी नहीं। कहती नहीं, मैं तो समझी तो मेरे पीछे पीछे आ रही, क्योंकि यहाँ पे आवाज आ रही है फुटस्टेप्स की। वो सुनना था कि ज़ीशान स्टूडियो में, नाजिया ने वहीं से चीखें मारी हैं, ज़ीशान भागते हुए आया और फिर पता नहीं आगे क्या हुआ। ये उनके साथ एक वाकया हुआ था और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ यार। मसला ये है मैं लिटरली बता नहीं सकता, मुझे बना क्या गया क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मुंह है। खैर हम अपनी बातें आगे पीछे कर लेते हैं। 1313 पे अगर आप लोग अपने SMS भेज रहे हैं तो भेज सकते हैं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाओ तो लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। नौमान आफ्ताब कहते हैं भाई आपके प्रोग्राम में कोई अजीब सी आवाज आई थी। अजीब सी आवाज आई थी? आई होगी, आती रहती है, कोई मसला नहीं है। मायरा फ्रॉम कराची, मिनहाज भाई आज आपका शो बड़ा ही डर वाला है, अच्छा है। फेसबुक पर अपनी पिक लगाई हुई है क्या? है क्या समझ नहीं है। हाय मिनहाज भाई, आई एम नेहा जमील, आई वांट टू नो दैट डज वैम्पायर्स एग्जिस्ट? अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज टेल मी। हाँ, वैम्पायर्स के बारे में वैम्पायर्स के बारे में मैं बताता हूँ राइट आफ्टर दिस ट्रैक फ्रॉम द मूवी। इस मूवी से असल में सलमान खान का रीवैम्प हुआ था, और ये मूवी कौन सी हुई भला? दबंग।
इस मूवी के बाद से जो है, जो हमारे हीरो है सल्लू भाई, वो उन्होंने कर दिया, सबको फू कर दिया। तो फ्रॉम द मूवी दबंग दिस इज मुन्नी बदनाम हुई। अब मुन्नी तो बदनाम हो गए, हम भी बदनाम हो जाते हैं, लेकिन जो आप लोग के सवाल आते हैं उसके जवाब देकर ही हम जाएंगे। इट्स 2:55, दिस इज RFM 105। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने 5-10 मिनट बाकी है। जल्दी जल्दी से बातें करेंगे और जल्दी से गाना भी सुनेंगे। पीछे पड़ा
में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show. प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। आखिरी 2-4 वाकयात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अबीरा अरशद ने अपना वाकया हमसे शेयर किया है और वो उस मुकद्दस जमीन का है जहाँ पे हर मुसलमान का जाना एक ख्वाब होता है। उनका मैसेज ये है कि आई हैव एन इवेंट टू टेल यू दैट दिस रमजान आई वाज इन सऊदी अरब। वो कहती मैं कहते जोहर के टाइम पे मैं मक्का शरीफ में जगह ढूंढ रही थी नमाज पढ़ने के लिए कि उनके पीछे एक औरत खड़ी हुई थी जिसने अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कहती है उस औरत के ऊपर जिन तारी हो चुके थे और बकौल उनके उसके ऊपर 3 जिन थे। वो कहते हैं वो उस वक्त जिन्नात का साया सामने आया जब अजान हो रही थी। जो करीबी लोग होंगे उन्होंने उस औरत के ऊपर आवे ज़मज़म डाला लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो उसी तरीके से चीखती रही जिस तरीके से पहले चीख रही थी। वो कहती हैं कि 1 सेकंड के लिए तो हमारी नजरें भी मिली एक दूसरे से। वो कहती है उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि मैं बिल्कुल साकित हो गई और फिर उनकी वालिदा ने उनको उस जगह से फौरन खींच के दूसरी जगह ले गई। वो कहती है मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई लेकिन मैं बिल्कुल भी उस काबिल नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी और मैं शायद 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। ओके, खैर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप प्लीज बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। मैं आपको बस थोड़ा बहुत ही बता सकता हूं कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूं तो मैं आप लोगों को किस तरह बताऊं कि मैं अगर नक्शा खींचने पे आऊं अपने रेडियो स्टेशन का तो इस तरीके से
कि हमारा जो मेन स्टूडियो है जिधर से प्रोग्राम ऑन एयर होते हैं वो सबसे आखिरी स्टूडियो है। उससे पहले 2 और स्टूडियोज हैं। अभी मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूँ वो ऑन एयर स्टूडियो नहीं है। ये वो वाला स्टूडियो नहीं है जहाँ से हम ऑन एयर जाते हैं यूजुअली। वो स्टूडियो बंद पड़ा हुआ है, उस पे काम हो रहा है। इन तीनों स्टूडियोज के बीच में शीशे लगे हुए, तो आप तीनों को आर पार देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो वाकया हुआ था वो ये हुआ था कि मैंने शो 1 बजे शुरू किया। 1:15 बजे मुझे बकायदा उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक ऊपर हुआ था, तो मुझे बातें करने की आवाजें आ रही थी, और बातें भी उर्दू जबान में नहीं, ना ही अरबी में, ना ही हिंदी में, ना ही अंग्रेजी में, जिब्रिश में। जिब्रिश एक ऐसी जबान होती है जो कि मुख्तलिफ अल्फाज की एक जबान होती है जिसको आप समझ नहीं सकते, उसको जिब्रिश कहते हैं। और मुझे क्लियर आवाज आ रही थी, तो मैंने जो हमारे वॉल्स की दीवारें उधर कान लगा के सुना, तो मुझे अपने ही दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही थी। दरवाजे से कह रहा हूं, दीवार के पीछे से आवाज आ रही थी, जो कि नामुमकिन सी बात है क्योंकि हमारे पीछे ही हमारा पूरा ऑफिस बना हुआ है। तो मैंने अपने इंजीनियर को बोला कि आप पीछे जाके देखो कौन है, किसकी आवाज आ रही है। तो उसने जाके देखा, उसने कहा कोई भी नहीं है मिनाज भाई। मैंने ठीक है। फिर मैं ऑन एयर गया, मैंने आप लोगों से शो करना शुरू किया, बातें करना शुरू की, वही जो तरीका है SMS का, और वाकयात शेयर करना शुरू किया। फिर मैंने म्यूजिक ऊपर किया। अच्छा, म्यूजिक ऊपर करने से पहले अब ये ऑन एयर लाइव आवाजें गई हैं, लोगों ने मुझे शिकायतें भेजी हैं कि चीखने की आवाज आ रही है, बकायदा जैसे दर्द में कोई चीखता है, और मुझे भी आवाज आ रही थी। तो मैं समझा शायद हमारे ऊपर या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड या थर्ड या पूरी बिल्डिंग में कोई ना कोई काम हो रहा होगा जिसकी वजह से कोई कुछ हुआ होगा कि आवाज आएगी। तो मैं घबराता हुआ बाहर गया, मैंने जाके देखा, मैंने ऑफिस के बाहर झांक के देखा कि कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है। अपने गार्ड को बोला, उससे पहले हमारे को गार्ड था, उससे पूछा, वो कहता है मुझे भी आवाज आई, लेकिन उसने कहा कि मैं पूरी बिल्डिंग में जाके देख के आता हूँ, क्या अगर कुछ होगा तो मैं बता दूं। वो मेरे पास आया वापस, उसने कहा मैंने पूरी बिल्डिंग के चौकीदारों से सबसे बात कर ली, किसी ने भी वो आवाज नहीं सुनी, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद जो हुआ वो आई थिंक सबसे ज्यादा एक खौफनाक चीज थी मेरे लिए, जिस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि यार आज शो नहीं करते। अब ये वो बातें जो आई डोंट नो बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है मजाक उड़ा रहे होंगे, उड़ाने दें, उनका काम ही है। गिरे हुए लोग तो गिरे भी होते ना, कीचड़ में पड़ा हुआ जो इंसान होता है वो कीचड़ में ही रहता है, चाहे उसको आप अच्छे बाथरूम में भी ले जाओ, कीचड़ में ही रहेगा। खैर, उनकी बात छोड़ देते हैं। मैं शो करना शुरू किया दोबारा से, 1:45 का टाइम था, एग्जैक्टली 1:45 बजे थे। उस दिन हमारी फोन लाइंस भी खराब हो चुकी थी, हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो मैं अपने मोबाइल के जरिए लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स पढ़ रहा था। सही है। अब मैं शो कर रहा था, अचानक से मेरे स्टूडियो की लाइट बंद होती है, पूरे स्टूडियो की लाइट बंद होती है, और जो हमारा दरवाजा है स्टूडियो का, वो जो लोग हमारे स्टूडियो आ चुके हैं उनको पता है, एक प्रोफेशनल स्टूडियो का दरवाजा एक नॉर्मल घर के दरवाजे जितना हल्का नहीं होता, इतना हैवी होता है कि हम लोग भी जब पुश करते हैं उसको तो जान लगानी पड़ती है। वो दरवाजा जोर से खुला है पूरा, मतलब ऐसा है किसी ने पूरी जान से खोला है, और वो मतलब 5-10 सेकंड तक खुला रहा और फिर धड़ करके बंद हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट चीज हुई थी, हमारे जो रूफ है, जो हमारी स्टूडियो की छत है, उधर एक फोम के बॉक्सेस बने हुए होते हैं, धड़ करके वो नीचे गिरी है, और वो मेरे बिल्कुल बराबर में गिरी है। और सिर्फ मेरे स्टूडियो की नहीं गिरी, हमारे तीनों स्टूडियोज की धड़ 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 लाइन से तीनों एक साथ गिरे। उसके बाद जो मेरे साथ इंजीनियर मौजूद था, मैं था, उसने फौरन कहा कि आप बंद करें शो, अब शो नहीं हो सकता।
मैंने भी कहा कि हाँ यार बंद कर देना चाहिए क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो ये एक रीजन थी शो ना करने की। अभी मुझे मालूम है कि मैं अपने शो करके जब बिल्डिंग के नीचे तक जाऊंगा तो मेरे साथ और भी बहुत सारे वाकयात होते हैं और होंगे, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट। दिस इज द रियलिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के प्रोग्राम कुछ मुख्तलिफ था। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मायूस हुए होंगे, लेकिन आप लोगों से माजरत। टेक्निकल रीजंस, और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली टेक्निकल रीजंस की वजह से हम शो नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला बुध वाले दिन द लेट नाइट हॉरर शो होगा रात 1 से 3, फिर हफ्ते को भी होगा रात से 1 से 3। तो आप ये 2 दिन, नेक्स्ट वीक 2 दिन शो सुन सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों से माजरत जो दिल बर्दाश्ता होके, रो के, पीट के, अफसरदा होके हमारा प्रोग्राम अभी भी सुन रहे। आई थिंक आप लोग माफ कर सकते हैं। इतने अजीब अजीब पॉलिटिशियंस को माफ कर दिया, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर दिया, हमारी छोटी सी गलती को माफ नहीं कर सकते, जो कि गलती भी नहीं है एक्चुअली। सो विद दिस, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोग चाहें तो हमारा फेसबुक का पेज द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने सारे वाकयात, सारे किस्से शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहें तो ईमेल्स भी भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारा जाने का जो टाइम आ चुका है, इसकी वजह से थोड़ा सा मेलापना जरूरी है उन लोगों के लिए जो हमसे मेले होने की कोशिश करते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो के जो पेज है या मिनहाज अली अस्करी का जो ऑफिशियल पेज है, उसमें बहुत सारे लोग आके गाली गलोच करते हैं। वो तो उनसे रिक्वेस्ट है क्या ना किया करो, उससे कुछ भी नहीं होगा, आप ब्लॉक हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से हम तो तरक्की करेंगे। ये वही एग्जाम्पल हो गई जैसे अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए या पाकिस्तान के लोग बुरे हो जाए। जिस तरीके से वो पाकिस्तानियों को पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं, पाकिस्तानी गंदे होते हैं, पाकिस्तानी ये होते हैं। तो ये जो चंद लोग हैं जो हमारे पेज पे आके, सिर्फ हमारे पेज पे नहीं बाकी प्रेजेंटर्स के पेज पे भी जाके बाकी जगहों पे भी गालियां लिख देते हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों की जिनके बारे में अमेरिका बात करता है। तो इन लोगों की वजह से हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, हमारा मजहब, हमारे सोसाइटी, हम सब बदनाम होते हैं। तो ऐसे लोगों को वैसे मारना चाहिए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी मार ये है कि इनको इग्नोर कर दें। होता ही है कि इनको इम्पोर्टेंस मिलती नहीं है घर में, सही है, इनको घर में इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे, बाहर भी इनको इनकी जैसे 2-4 टुच्चे मुच्चे मिल जाएंगे। वो जैसे एक साहिबा ने कहा था ना कि बरसात हुई है तो मेंढक बाहर निकलेंगे। अब ये मेंढक हैं, ये मेंढक साफ पानी के मेंढक नहीं, गटर के मेंढक हैं, गंदे पानी के मेंढक हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं। फिर मसला ये कि हर किसी के पास कंप्यूटर भी है, अगर कंप्यूटर नहीं भी है तो साइबर कैफे हैं, तो ये 15 रुपए में जाके कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, ए कंप्यूटर ये कैसी चीज है, ये फेसबुक लगा ना, फेसबुक, ए मेरा नाम आरिफ कुतुबुद्दीन @yahoo.com, ये वाला लगा के फिर वो लोगों की वेबसाइट्स पे जाते हैं, लोगों की फेसबुक पे जाते हैं, ए मिनहाज अली अस्करी, इसको गालियां देते हैं, एक तो ये करते हैं। इनका बेसिक मकसद यही होता है, उनको लगता है इन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल कर ली। तो आज चूंकि मेरे पास मौका था, तो दोस्तों हमसे अगर आपने गालियां सुननी है तो सुन सकते हैं, कभी आमना सामना कर लें, आके बैठ जाएं, फिर देखते हैं किसकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, चैलेंज के साथ कहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उधर यार लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, खवातीन होती हैं, पता नहीं कौन कौन होता है, बाहर के लोग देख रहे होते हैं, तो क्या आपका इंप्रेशन उन पे पड़ रहा होगा? सही तो कहेंगे कि जाहिल अवाम है या जाहिल है, मैं तो कहता हूँ कि नहीं हम लोग जाहिल, लेकिन यही चंद 2-4 लोग जो हैं प्रूफ कर देते हैं उन लोगों की बातें कि हम लोग जाहिल हैं। तो इन 2-4 लोगों के लिए ये देखें, मैं आज ऑनर एक चीज करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो गालियां देते हैं। ये मेरी छोटी वाली उंगली उठी
ये मेरी बीच वाली उंगली उठी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, ये 5 उंगलियां उठी हुई है, नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही होंगी, महसूस करें ये 5 उंगलियां क्या बनती हैं, फिर महसूस करें, फिर आपको पता चल जाएगा। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरे बाद आप सुन सकेंगे प्रोग्राम और होंगी बहुत सारी बातें। विद दिस टेक केयर, खुदा हाफिज। और जाते जाते हम वो गाने चलाते हैं जो यूजुअली हम चलाते हैं अपने प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।